सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤੀ मूवमेंट। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ मूवमेंट। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋग कुछ बोल रहे हो तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट 169 पेज मेरा हैगा जो। तो नेक्स्ट तुसी अपना निकाल लो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, चैप्टर नेम सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, मेन करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो असी टॉपिक करना हैगा फर्स्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ फेथ इन वन गॉड, ठीक है, परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ठीक है। उस तो बाद फेथ इन गुरु, कहते गुरु दे विच फेथ करते सी। कौन? जो भक्ति मूवमेंट दे नाल रिलेटेड पर्सन सी, गुरु दे विच बिलीव करते सी। सो कहते कबीर, नामदेव, गुरु नानक देव जी कहते इन्हां सब ने ये चीज बोली है कि अगर तुसी अपनी लाइफ दे विच इमॉर्टल, मतलब कि कह लो कि जन्म मरण, सॉरी इमॉर्टल बोल दिता, जन्म मरण, बर्थ और डेथ वर्गियां चीजां तो अगर तुसी बाहर निकलना है तो देन तुहानू एक गुरु दी जरूरत है। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰ। ਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो गुरु ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मतलब भक्ति मूवमेंट दे नाल रिलेटेड पर्सन, तो उन्होंने बोलिया है कि बहुत बार कह लो कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अफेक्शन, प्राइड, मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, कहंदे ह्यूमन बीइंग नु ना कहंदे these evil are lust, anger, greed, affections, pride। गुरु नानक देव जी एपिटिसेट, मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इन्हां सारियां चीजां नूं ना तुहानूं खत्म कर देना चाहिए। लोभ, मोह, हंकार कुछ नहीं होना चाहिए। कहते टोटल सरेंडर ऑफ द सेल्फ कैन ओनली वन इन द अटेंडिंग गॉड। कहते आप गवाइए तो सौ पाइए, मतलब कि तुहानूं अपने आप नूं पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहिए, फिर लाइफ दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, लेकिन वो देता है जो वो चाहता है। आप वो मांगते हो जो आप चाहते हो, वो देता है जो वो चाहता है। एक बार जो वो चाहता है उसे पालो, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हो,
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁछ टाइम ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲੋਗੇ, परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਗਾ, नो डाउट परमात्मा ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਨੇਰ ਸਵੇਰ परमात्मा ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ परमात्मा ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁछ टाइम ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੋ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So next है जी stress on pure life। stress on pure life ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ one should help the poor। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ they should alive their enter life honesty। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਭਗਤੀ did not give the renunciations of the word। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, मतलब अपने आप ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ। गुरु नानक देव जी ने अक्सर ये चीज बोली है कि हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है, ये जस्ट ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तुसी एक हिंदू नु पगड़ी पहना दो, वो सरदार बन जाएगा, क्योंकि उससे जो हैगा कह लो कि दाढ़ी वगैरह तो हुंदी है ना। तो ये लोगों ने इंसाना ने चीजा बना देती हैं। तुसी हिंदू हो, मैं मुस्लिम हाँ, वो सिख है, वो ईसाई है, तो सब लोग सब चीजा की ने किसने बना देती ने? ये सब चीजा ने जो आम नॉर्मल इंसान ने बनाई ने। गुरु नानक देव जी बोलते ने कि इस तरह दी चीजा तो हुंदियां ही नहीं है, सब लोग एक ने। ठीक है। तुसी एवें किसी रिलीजियस दे विच जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। उस तो बाद उन्होंने ये चीज बोली हैगी है, कहंदे गुरु नानक देव जी ने ये चीज बोली है कि रिलीजियस दे बेसिस दे उत्ते भी तुहानू कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग दा इदां दा कोई हक नहीं है कि तुसी रिलीजियस बेसिस दे उत्ते एक दूजे नाल डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो गुरु नानक देव जी ने इन्हां सारियां चीजां दा की कीता हैगा वा, विरोध कीता वा, अगेंस्ट गए हैगे आ। ठीक है। चलो नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ठीक है। ਤਾਂ ਜੋ हर कोई उस चीज ਨੂੰ समझ सके, उस चीज से बिलीव रख सके। अगर मान लो कोई मैंने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाएगा तो मैंने कौन सा संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा है, तो मुझे कौन सा पता चलेगा? कुछ भी बोलता रहे, कोई भी बोलता रहे, मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप ये लोग समझो कि ਜਦੋਂ मतलब ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। लेकिन ਜਦੋਂ ਕੋਈ मतलब अलग ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them God worship cannot be done in any language। मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗॉड ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ शिव शंकर भगवान जी, है ना, तो मैनू शंभूनाथ वर्ड ठीक लगता है, तो ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शंभूनाथ बोलूंगी तो शिव शंकर भगवान जी मेरी सुननगे ही ना। तो भगवान नहीं भगवान कहते हैं पंजाबी च विच। तो
तो ऐसा थोड़ी ना है कि शंभूनाथ जी मेरी सुनन के ना उन्होंने बोला कि आपने तो भगवान बोल दिया, मैं तो भगवान हैगा, मैं क्यों सुना थोड़ी लैंग्वेज। इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗॉड ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो गॉड कोई एक लैंग्वेज नहीं सेट करके ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ डिसबिलीव इन कास्ट सिस्टम। ਕਹਿੰਦੇ कास्ट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ बिलीव ना करना, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी क्या बोलते ने कि कास्ट सिस्टम है ना जो, तो उसਦੇ ਵਿੱਚ जो है बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कुछ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो इस तरह ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ नहीं करने चाहिए। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ no one ask about caste, one who has worshipped God become one with God। ਕਹਿੰਦੇ जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भाजे सो हर का होए। मतलब जात पात नहीं कोई पुछदा हैगा, तुसी मर के भगवान को चले जाओ, उसने नहीं पूछना भी तू केड़ी कास्ट दा है, चला कैटेगरी च खड़ जा, केड़ी कास्ट दा है, तुसी दूसरे कैटेगरी ते विच खड़ जाओ। तो ऐदां दा परमात्मा नहीं पुछदा, ओदे लई सब इक है ना। तो नेक्स्ट है डिसबिलीव इन द आइडल वर्शिप, IDOL, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है मूर्ति पूजा, ठीक है। जो गुरु नानक देव जी है ना, तो उन्होंने बोला है कि किसी भी भगवान के ऊपर बिलीव करना है तो करो, लेकिन उनकी मूर्ति बनाकर जो उनकी पूजा कर देते हो ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। तो गुरु नानक देव जी ने यही चीज बोली है कि मूर्ति बना के किसी दी पूजा नहीं करनी चाहिए, इस दे नाल कुछ हासिल नहीं हुंदा, ठीक है। कहंदे जदों ਇਹ मतलब ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ मूर्ति बनाते हो, तो कहंदे कि बहुत बार ना ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ मूर्ति ਨੂੰ, जिस तरह ਹੁਣ गणपति भगवान की पूजा करते हैं ना लोग, तो भगवान ਦੀ पूजा ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, लास्ट टाइम ਤੇ भगवान ਨੂੰ अर्पित मतलब जो है ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो कहते इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। उस भगवान ਨੂੰ जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कर लेके आए ਹੈਗੇ ਹੋ, उस भगवान ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ छोड़ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, इस तरह ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कि बिलीव नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा है ना, उनको ना तो आप घर की चार दीवारी के अंदर रख सकते हो और ना ही भगवान की ऐसे वर्शिप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। भगवान मूर्ति में तो होता ही नहीं है। आप किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, अगर वहां पर बैठे भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो ना भगवान इजिली आपकी वहां पर भी सुन लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना पड़े, मस्जिद जाना पड़े, गुरुद्वारे में जाना पड़े, तो ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान हर जगह पर है, ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, मस्जिद में है, मूर्ति में है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि जो भगवान है ना वो हर जगह पर है, आप उसकी मूर्ति बनाकर उसको पूजा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है डिसबिलीव इन द इम्पिटी रिचुअल्स। कहते कि खोखले रीति रिवाजा विच अविश्वास, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो मतलब वो कहते नहीं कि जो सोसाइटी दे विच जो रीति रिवाज होंगे ने, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फास्ट रख लेना, ठीक है, रोजे रख लेने, तो बलि दे देना, किसी चीज का सैक्रिफाइस कर देना, कहते इस तरह दी चीजा दे विच बिलीव नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ना संत वगैरह इस तरह के होंगे, अपने जो हैगा हेड, फोरहेड होता है उसके ऊपर ना ऐश लगा लेते हैं। ऐश का मतलब क्या होता है, राख लगा लेते हैं। जो एयर है उनमें इयररिंग्स डाल लेते हैं, बहुत सारी मालाएं हाथ में डाल लेते हैं। तो ऐसा ना चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक किस्म के बुरी तरह के जो रीति रिवाज होते हैं ना, तो वो है। तो गुरु नानक देव जी ने इन सब चीजों पर ना डिसबिलीव करने को बोला है कि बिलीव नहीं करना चाहिए इन सब चीजों पर, ठीक है। सो ऐसे तो जो यहाँ पर है ना, आपको यही सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद लिखा होगा, आप देखो एक जगह पर लिखा होगा इम्पैक्ट ऑफ ए भक्ति मूवमेंट। देखो यहाँ पर जो पॉइंट है लिखा होगा इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, कि भक्ति मूवमेंट है ना जो उसके इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े। सबसे पहले तो संसार में जितनी तरह की बुराइयां थी, सब तरह की बुराइयां खत्म की, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, कबीर, ठीक है, दादू दयाल, बहुत सारे संत आए जिन्होंने समाज में जो बुरी बुरी चीजें थी उनको खत्म करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोसाइटी में जितनी भी बुरी चीजें थी उनको खत्म कर दिया एंड सोसाइटी में अच्छी अच्छी चीजें जो है उनको चलाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, समाज में जो इवल्स है, समाज में जो बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयां खत्म हो गई, ठीक है। संसार में कहते हैं कि लोगों ने अपने अपने जो ग्रंथ है वो बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पहले लोग ब्राह्मण होते थे, उन्होंने जो बोल दिया लोगों ने इजी
एजली एज इट इज ही उनको एक्सेप्ट कर लिया। पर आप देखो ना, ब्राह्मण की लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आएगी, वो कौन से मंत्र बोल रहा है, हमें कौन सा वो समझ आते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं। आप मंदिर में चले जाओ, वो आपके सामने बहुत सारे मंत्र है जो वो बोल देगा, क्या आपको समझ में आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे, बिकॉज आपको उनके बारे में कभी नॉलेज ही नहीं होगी।